Good day to all friends. This is the part 5 of the molecular basis of inheritance, chapter 6 of class 12 biology. Today's topic is genetic code and types of RNA. As you know, my YouTube channel Biology with Pukhraj Vaishnav deliver continuously the video lecture on the biology class 11, 12 and NEET aspirant. If you like the video lecture, then please share it to your friends, subscribe the channel and press bell icon for the future notification. So let us start today's topic, genetic code and types of RNA. The first point is, what do you mean by genetic code? What is the meaning of genetic code? So actually, genetic code is what the definition is: the relationship between the sequence of amino acid in polypeptide chain and nucleotide sequence of mRNA or DNA is called genetic code. It means the genetic informations transfer from DNA to RNA and then in the form of protein, that all depend on what a particular type of the codon sequence, that is called genetic code. Now, second definition is the genetic representation of codon by which the information in RNA is decoded in the form of polypeptide is called genetic codon. And you can say the order in which bases nucleotides are arranged in a RNA deciding the order in which the amino acid are arranged in the protein, that is called genetic code. Ultimately, what is the genetic information first it transfer from the DNA to RNA, and that nucleotide sequences expresses in the form of linear chain of amino acid, that is called genetic code. Now, it was hypothesis proposed by George Gamow that triplet code is operative as DNA contain only 4 bases while the number of amino acids are 20, so it generated 64 codon. Actually, firstly it described that at least 3 nitrogen base required for a codon, so total number of codon generated by this concept is 64, while the amino acid is only 20. So this is the better concept and proposed by George Gamow. Hargobind Khurana is another Indian scientist synthesized homopolymer and copolymer, that is RNA molecule with specific combination of bases. They synthesize the amino acid sequence in laboratory. If the amino acid sequences are of same type, then it called homopolymer, and if amino acids are of different type in a chain, then it's called heteropolymer. You can say copolymer. Marshall Nierenberg helped in deciphering the code by making a cell-free system for a protein synthesis. It means that they synthesize artificially the sequence of amino acid by the concept of genetic codon. So deciphering the code by making a cell-free system. Cell-free system means artificially. For this work, Hargobind Khurana shared Nobel Prize in 1968 with Nierenberg and Holly. Genetic codon. The process of translation required transfer of genetic information from polymer of nucleotide to a polymer of amino acid is called genetic code. Physicists, organic chemicists, biochemicists and geneticists are worked in the field of genetic code. It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases and they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. This at least what? There are 4 types of bases, nitrogen bases. One is adenine, second is guanine, then thymine and cytosine. And at least 3 bases is required for the particular genetic code. We discuss in the later slides. Next is, he suggests that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. At least 3 nitrogen bases, at least 3 nucleotides is required for the genetic code.
The genetic code, suppose it is a hypothesis proposed by Gamow that if one base code for one amino acid, code only for 4 bases. अगर एक ही नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने बनेंगे, टोटल अमीनो एसिड कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। लेकिन हमें तो कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20, तो ये तो सफिशिएंट कैलकुलेशन नहीं हुई। अगर 2 बेसिस लेते हैं, 2 बेसिस का मतलब एक नाइट्रोजन बेस का मीनिंग हो गया कि अगर आप एडेनाइन लेते हो और एडेनाइन से एक अमीनो एसिड बनता है तो कितना अमीनो एसिड बना, 1। फिर इसी तरीके से थाइमिन लेते हो, थाइमिन से 1, ग्वानिन से 1, साइटोसिन से 1, तो 4 ही अमीनो एसिड, 4 ही नाइट्रोजन बेस है और 4 ही नाइट्रोजन बेस है, केवल 4 ही अमीनो एसिड बनेंगे। तो इट इज नॉट पर्टिकुलर कैलकुलेशन। सो अगर 2 अमीनो एसिड ले, जैसे ए और टी ले लें, कोई भी 2 अमीनो नाइट्रोजन बेस ले लें, जैसे ए टी ले लिया, इससे एक अमीनो एसिड बन ले, जीसी ले लिया, इससे एक अमीनो एसिड बनता है। तो इस तरीके से 2 बेस अगर लेते हैं तो इससे भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं टोटल, और 4 का पावर अगर ले तो 4 पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट, 16। तो टोटल कितने अमीनो एसिड बन सकते हैं, 16 अमीनो एसिड बन सकते हैं। लेकिन 3 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ले, कोई भी 3 नाइट्रोजन बेस ले लीजिए, जैसे AAT, TTU, कोई भी ले सकते हैं, तो उससे कितना बन सकता है, तो 4 पावर 3 इक्वल्स टू 64। ये 20 अमीनो एसिड से भी ज़्यादा की कैलकुलेशन है, तो इसलिए एटलीस्ट 3 नाइट्रोजन बेस तो रिक्वायर्ड होते ही हैं जेनेटिक कोडॉन के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट अकाउंट फॉर द अमीनो एसिड। देयर आर एक्स्ट्रा बट some have more than 1 codon and some codon are started and codon. So we can say कि 64 is more than the 20 अमीनो एसिड, लेकिन इसमें काफ़ी कोडॉन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं, इसलिए ये सफिशिएंट नंबर होते हैं। नाउ ट्रिपलेट कॉन्सेप्ट जैसे लेके आए 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 पावर 1 अगर एक नाइट्रोजन बेस ले तो 4 ही कोडॉन बनते हैं जो कि इनसफिशिएंट है। 4 पावर 2 अगर 2 नाइट्रोजन बेस से अगर आप कोडॉन बनाते हैं तो 4 पावर 2 16 कोडॉन बनते हैं जो भी अनसफिशिएंट कोडॉन है, क्योंकि अमीनो एसिड तो 20 होते हैं और 20 अमीनो एसिड को कोडॉन करने के लिए एटलीस्ट 20 कोडॉन तो चाहिए होते हैं। इसलिए 4 पावर 3 यानी कि एक कोडॉन के अंदर एटलीस्ट 3 नाइट्रोजन बेस होने चाहिए, जिससे 64 कोडॉन को वो कोड करते हैं, और ये एक्सिस है लेकिन सफिशिएंट नंबर है। Now proof for the triplet codon, the chemical methods were developed by Hargobind Khurana। Hargobind Khurana ने प्रूफ भी दिया था कि 3 नाइट्रोजन बेस जो है एक जेनेटिक कोडॉन में होता है। उन्होंने आर्टिफिशियली होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए थे। उन्होंने पहले यू को लिया तो देखा कि फिनाइल एलिनीन की एक लॉन्ग चेन बनी थी, और ए को लिया तो लाइसिन की, और सी को लिया तो प्रोलीन की। तो इसके अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस एक ही प्रकार के अमीनो एसिड बना रहे हैं, तो इसलिए इसको होमोपॉलीमर कहते हैं। और सी का जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस लिया उससे 2 प्रकार के अमीनो एसिड बने, एक तो ल्यूसीन और एक सेरीन अमीनो एसिड बने, जिसको कोपॉलीमर कहते हैं, क्योंकि 2 तरीके के नाइट्रोजन अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है। सो बोथ कोपॉलीमर एंड homopolymers are artificially synthesized by Hargobind Khurana in laboratory. Heterohomopolymer consists same type of the amino acid, whereas the copolymer consists different type of amino acid like leucine and serine. Marshall-Nirenberg X proof for triplet code artificially synthesized by mRNA in cell-free system. Marshall-Nirenberg ने भी ये सिंथेसिस किया। उन्होंने UU1 टाइप ऑफ AA फिनाइल एलेनिन बनाया, यानी UU नाइट्रोजन बेस लिए और क्या बनाया, उसे फिनाइल एलेनिन बनाया। ओके। इसके अलावा सेवरो-ओचावा एंजाइम, जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं, हेल्प इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए ट्रिपल यू कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। इट मीन्स एज वी नो दैट पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए इज डिपेंड ऑन आरएनए पॉलीमरेज। ओके, जो हम ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस किया था, ट्रांसक्रिप्शन में हमने बताया था कि आरएनए का जो पॉलीमराइजेशन हुआ है उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क कर
करता है। इसी तरीके से डीएनए के पॉलीमराइजेशन में कौन वर्क करता है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये जो ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए थे, इसके अंदर भी एक लेबोरेटरी में आप आर्टिफिशियल एंजाइम यूज करोगे, तो आर्टिफिशियल एंजाइम का नाम क्या था? सेवेरो-ओचावा एंजाइम, और जिसका केमिकल नेम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलिन। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी से प्रोलिन बनाया था, ट्रिपल ए से लाइसिन बनाया था, ये सारा ट्रिपल यू से फिनाइल एलेनिन बनाया था। ये सेवेरो-ओचावा एंजाइम की प्रेजेंस में आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाए गए। नाउ दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस कि इस तरीके से 4 नाइट्रोजन बेस का फर्स्ट लेटर UCAG, इधर भी UCAG हो गया सेकेंड लेटर, और ये थर्ड लेटर, तो ये नाइट्रोजन बेस है। इसमें आप याद कर सकते हो, ये फिनाइल एलेनिन बनाते हैं, ये ल्यूसिन बनाते हैं, ये ल्यूसिन 6 तरीके के कोडॉन ल्यूसिन बनाते हैं, आइसोल्यूसिन 3 तरीके के बनाते हैं, वेलिन जो है वो 4 तरीके के बनाते हैं, सेरीन यहाँ देख रहे हो 4 तरीके के कोडॉन जो है वो सेरीन, और 2 यहाँ पे टोटल 6 हो गए, यानी कि ल्यूसिन और सेरीन इस प्रकार के नाइट्रोजन बेस है जो 6 टाइप के कोडॉन से बनते हैं। प्रोलिन जो है वो 4 तरीके से बन रहे हैं, यहाँ पे थ्रियोनिन बन रहे हैं, एलेनिन बन रहे हैं, टायरोसिन इससे बन रहे हैं। ये येलो कलर में ट्रिपल यू और UAG और UGA ये स्टॉपिंग कोडॉन है, यानी कि ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसी तरीके से यहाँ AUG की बात करें तो ये इनिशिएशन कोडॉन है, या आर्जिनिन बना रहा है, ये स्टिरिन बना रहा है, ग्लूटामिन, ये आपके डिपेंड करता है आप कितना लर्न कर सकते हो। ये ग्लाइसिन बना रहा है। तो आप सारा सीक्वेंस कौन सा कोडॉन कौन सा नाइट्रोजन बेस बना रहा है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे कि आप कितना याद कर पाते हो। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोडॉन। द कोडॉन इज ट्रिपलेट 61, टोटल कोडॉन 64 होते हैं, लेकिन 3 स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं। तो टोटल कोडॉन कितने हुए जो अमीनो एसिड की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके? तो 61 फॉर अमीनो एसिड। 3 कोडॉन आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉनसेंस? क्योंकि वो किसी भी तरीके के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, स्टॉपिंग कोडॉन है, उनके स्पेसिफिक नेम भी है। जैसे उवा फर्स्ट स्टॉपिंग कोडॉन है जिसका स्पेसिफिक नेम क्या होता है? ऑचरी। उग UAG उग इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? एम्बर। और उगा का स्पेसिफिक नेम क्या है? ओपेल। तो ये भी काफी बार पूछे जाते हैं, इनको आप याद करें स्टॉपिंग कोडॉन के नाम। 1 कोडॉन कॉड 1 अमीनो एसिड अनएम्बिगुअस। ये जो था एक फीचर है जेनेटिक कोडॉन का कि जेनेटिक कोड आर अनएम्बिगुअस। इट मीन्स कोई भी एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड बनाता है, कभी भी एक कोडॉन 2 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड नहीं बना सकता, यानी कि उनका काम फिक्स होता है। दे आर स्पेसिफिक, 1 कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। दे आर नॉट डाइवर्टेड, दे आर नॉट एम्बिगुअस, दे आर नॉट एम्बिगुअस। लिसन, वो भटके हुए नहीं होते, 2 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड नहीं बनाते। दे आर अनएम्बिगुअस, इट मीन्स दे आर स्पेसिफिक। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस? स्पेसिफिक, यानी पर्टिकुलर होते हैं, एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन आपका जो है वो GUG है, क्योंकि GUG एक्सेप्शन होता है। GUG को हम कह सकते हैं कि GUG जो है वो एम्बिगुअस है ना, नॉट स्पेसिफिक है। कैसे? क्योंकि अगर ये चेन के फर्स्ट कोडॉन में है, किसी भी चेन के फर्स्ट में शुरुआत में है, तो ये इनिशिएशन AUG की तरह, जस्ट लाइक AUG इट वर्क एज इनिशिएशन कोडॉन एंड इट कोड फॉर मिथियोनिन। जैसे AUG मिथियोनिन बनाता है उस प्रकार ये भी क्या बनाएगा? मिथियोनिन। अगर ये किसी भी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के चेन के फर्स्ट में आ रहा हो और मिडल में आ रहा हो तो ये वेलिन बनाता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 2 काम कर रहा है। ड्यूल फंक्शन इज देयर फॉर GUG, 1 इज इट कोड फॉर मिथियोनिन एंड सेकेंड वर्क इट कोड फॉर वेलिन। सो इट इज एम्बिगुअस, राइट। बाकी सारे कोडॉन जो होते हैं वो अनएम्बिगुअस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, ये एम्बिगुअस है। Okay, now the second condition is some amino acid are coded for more than 1 कोडॉन। जैसे आपको बताया था कि ल्यूसिन अमीनो एसिड बनाने में 6 प्रकार के कोडॉन काम में आते हैं। तो कुछ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं। सम अमीनो एसिड कोड बाय मोर देन 1 कोडॉन, देन इज कॉल्ड डीजनरेट 1 अमीनो एसिड मोर कोडॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि सारे अमीनो एसिड डीजनरेट होते हैं, केवल नॉन डीजनरेट कोडॉन एक ही होता है। वो कौन है? वो आपका UGG केवल ट्रिप्टोफैन बनाता है।
Okay, so tryptophan is the amino acid that code by only one codon, that is UGG. It is non-degenerate. बाकी सारे जो अमीनो एसिड है वो नॉन डिजेनरेट है क्योंकि एक से ज़्यादा कोडॉन से बनते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। काफ़ी बार एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्बिगुअस? अनएम्बिगुअस मीन्स वन कोडॉन कोड फॉर वन अमीनो एसिड। दे कोडॉन आर स्पेसिफिक। ये ध्यान रखिए माइंड में, कोडॉन स्पेसिफिक होते हैं, केवल एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं। इसको कहते हैं अनएम्बिगुअस। सारे जेनेटिक कोडॉन अनएम्बिगुअस होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है और वो है जीयूजी, जो कि एम्बिगुअस है। कभी कभी मिथ्योनिन बनाता है, कभी कभी वैलिन बनाता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक। इस प्रकार डीजेनरेट का मीनिंग होता है कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड फ्रॉम मोर देन वन कोडॉन, यानी कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, इसलिए इसको डीजेनरेसी कहते हैं। लेकिन फिर भी एक अमीनो एसिड ऐसा है ट्रिप्टोफैन जो केवल यूजीजी से ही कोड होता है, तो वो नॉन डीजेनरेट एक्सेप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन अ कंटीजियस नो पंक्चुएशन, विदा उनमें बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, कंटीन्यूअस होते हैं और लीनियर होते हैं। फिर और आगे डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मीनिंग है जो जेनेटिक कोडॉन बैक्टीरिया के अंदर अमीनो एसिड बना रहा है वही जेनेटिक कोडॉन ह्यूमन के अंदर भी वही अमीनो एसिड बनाएगा। किसी तरह का डिफरेंस नहीं रहेगा पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू एनिमल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहलाता है। द कोड नियरली यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। ट्रिपल यू बैक्टीरिया में फिनाइल एलेनिन बनाएगा और ह्यूमन में भी फिनाइल एलेनिन बनाएगा। नॉन एम्बिगुअस कोडॉन जो है कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। नॉन एम्बिगुअस यानी कि अनएम्बिगुअस पता ही है, अनएम्बिगुअस होते हैं। एम्बिगुअस में आपको बताया था जीयूजी होता है। कोलिनेटरी कोड ऑफ आरएनए अमीनो एसिड सम लीनियर फैशन में रहते हैं। एयूजी जो है वो इनिशिएशन कोडॉन है और इसके दो काम होते हैं। दो काम क्या है? एक तो ये मिथ्योनिन बनाता है, कोड फॉर मिथ्योनिन। दूसरा क्या है? ये इनिशिएशन कोडॉन है, यानी कि ये ट्रांसलेशन स्टार्ट भी करवाता है ना। तो दो काम हो गए इसके। इट कोड फॉर मिथ्योनिन एज इनिशिएटेड कोडॉन, सो इट वर्क एज ड्यूल फंक्शन। ये भी बोर्ड क्लासेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। सम एक्सेप्शन टू रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड सम प्रोटोजोम। कुछ एक्सेप्शन, इसका भी कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जेनेटिक कोडॉन के। वो माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोडॉन है वो एक्सेप्शन है, और कुछ प्रोटोजोआ का कोडॉन है वो जेनेटिक कोडॉन के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ 3 कोडॉन डायरेक्ट चेन टर्मिनेशन, यानी कि आपको बताया था कि इसके अंदर उवा, उग और उगा ये स्टॉपिंग कोडॉन है और ये हर ट्रांसलेशन को भी स्टॉप यही करेंगे, क्योंकि जब भी जेनेटिक कोडॉन के अंदर आपका ये टर्मिनेशन कोडॉन आएंगे तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड रुक जाएगी। दे आर नॉट रीड बाय टीआरएनए, क्योंकि ये टीआरएनए से रीड नहीं होते बाय प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर बैक्टीरिया एंड ईआरएफ इन यूकैरियोट, बट बाय प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर, यानी रिलीज फैक्टर इनको पहचान लेते हैं। अपने बैक्टीरिया के अंदर RF1 और RF2 रिलीज फैक्टर इनको पहचानते हैं टर्मिनेशन कोडॉन को, और यूकैरियोट में ERF1 जो है इनको पहचानते हैं ताकि पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड स्टॉप है टर्मिनेशन कोडॉन आने पर। फिर बात आती है कुछ म्यूटेशन डिस्कस कर लेते हैं। जीन म्यूटेशन, क्योंकि जीन म्यूटेशन इन्हीं से जेनेटिक कोडॉन से ही जुड़े हुए हैं कुछ सीक्वेंस है। जैसे आप देखेंगे अल्टरिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब बदलाव होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर चेंजेज आते हैं तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। चेंजिंग इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस ऑन द mRNA लीड्स टू द 3 रिजल्ट। किसी एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने में जो चेंज आता है, बदलाव आता है, उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और ये पॉइंट म्यूटेशन 3 तरीके का होता है। द फर्स्ट नंबर इज साइलेंट म्यूटेशन। द कोडॉन कंटेनिंग द चेंज बेस में कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल इन सेरिन। आप देखिए सेरिन में UCA होता है और UCA जो किस लिए कोड करता है सेरिन में, अगर इसमें A चेंज कर दिया जाए तो ये UCU, A की जगह क्या लेके आ गए आप? U लेके आ गए। A की जगह क्या? थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर नाइट्रोजन बेस को बदलाव करते हैं तो उसके अमीनो एसिड में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। इट मीन्स बाय चेंजिंग
the A and exchange U in place of A, there is no change in the expression. पहले भी सेरीन बना था, अब भी सेरीन नाइट्रोजन बेस बना है, तो इसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब है कि जैसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंस सेरीन कोडन फॉर यूसीए इज चेंज टू सीसीए, यानी आप यूसीए की जगह इसका पहला नाइट्रोजन बेस यू की जगह आप सी लेके आ रहे हो, तो यू इज रिप्लेस बाय सी, इट विल कोड फॉर प्रोलीन। पहले प्रोलीन बनता था, प्रोलीन नॉट, पहले सेरीन बनता था, अब प्रोलीन बन रहा है। तो इस तरीके का जो नाइट्रोजन बेस में आप अमीनो एसिड भी सीक्वेंस चेंज हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड नाइट्रोजन बेस को चेंज किया जाए तो उससे बनने वाले अमीनो एसिड भी बदल जाते हैं। इसको मिससेंस म्यूटेशन कहते हैं। इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल जो है आपका सिकल सेल एनीमिया है, जो आपने मॉलिक्यूलर इससे पहले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। नॉनसेंस म्यूटेशन रहता है द कोडॉन कंटेनिंग द चेंज बेस में बिकम अ टर्मिनेशन कोडॉन फॉर एग्जांपल, यानी कि कभी भी किसी के नाइट्रोजन बेस को चेंज करने से वो कोडॉन टर्मिनेशन कोडॉन में बदल जाता है, तो उसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। जैसे यूसीए में आप मिडल वाले सी को चेंज करके फिर ये यूएए बन जाए, तो आपको पता है वह जो है वो स्टॉपिंग कोडॉन है, तो इस प्रकार का जो बदलाव आता है उसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, एक नाइट्रोजन बेस को चेंज करने से होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने से होता है, और उसके 3 टाइप है। पहला टाइप साइलेंट म्यूटेशन, सेकेंड मिससेंस और तीसरा नॉनसेंस म्यूटेशन। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं ये साइलेंट म्यूटेशन है, जैसे जी ट्रिपल जीए लास्ट वाले 3rd नंबर नाइट्रोजन बेस पे ए की जगह क्या लेके आ गए आप जी, तो इसके अंदर पहले भी ग्लूटेमिक बन रहा था, अभी भी ग्लूटेमिक बन रहा था, अमीनो एसिड के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, तो ये साइलेंट म्यूटेशन है। मिससेंस म्यूटेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले GAA है और यहाँ पे GAC 3rd नाइट्रोजन बेस में भी हो सकता है ऐसा, बस नाइट्रोजन अमीनो एसिड चेंज हो जाए, तो ये ग्लूटेमिक बना रहा था और ये एस्पार्टिक बना रहा है। अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाता है तो इसको मिससेंस कहेंगे। नॉनसेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले GAA थे और इसके अंदर G की जगह क्या आ गया, TAA आया, तो ये स्टॉपिंग कोडॉन स्टॉप हो गया, तो स्टॉप कोड जाता तो इसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग कोडॉन बन जाता है। तो स्टॉपिंग कोडॉन अगर बन जाता है तो इस तरीके से आप इसको नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। स्टॉपिंग कोडॉन कौन से हैं, उगा उगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो आप कहेंगे कि सॉरी यहाँ पे यू होना चाहिए, टी नहीं, क्या होना चाहिए यू, तो ये उवा में बदल गया और यू उवा में बदल गया, तो ये क्या बन गया, उग उवा उवा। आपको पता है कौन कौन से टर्मिनेशन कोडॉन है? टर्मिनेशन कोडॉन पहला है UAG, फिर है UGA और फिर है UAA, ये तीनों टर्मिनेशन कोडॉन है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन बन चुका है और इसको अपन नॉनसेंस म्यूटेशन कहेंगे। फिर ले लेते हैं टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में वापस से वही नॉनसेंस बताया है यहाँ पे कि ये टर्मिनेशन कोडॉन बन गया है। साइलेंट में बताया है कि दोनों सेरीन बना रहे थे, और मिससेंस में बताया था कि पहले अलग बना रहा था सेरीन और अब क्या बना रहा है वो प्रोलीन। तो ये वापस से इसी को एक्सप्लेन करना चाहा है स्लाइड के अंदर। अब दूसरा बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब है जैसे आप यहाँ देख रहे हो डिलीशन और एडिशन, या डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो किसी एक नाइट्रोजन बेस को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो UAC जो है, या ये एक इंसर्शन हो रहा है और उसे किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये G यहाँ पे डिलीट कर, G जैसे डिलीट किया ये A आगे आ गया और ये GC पूरा आ गया। तो यहाँ लास्ट में 2 ही नाइट्रोजन बेस है। पहले ये 4 अमीनो एसिड बना रहा था, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड को बाहर रिमूव करने पर, डिलीट करने पर अब ये केवल 3 ही अमीनो एसिड बना रहा है। तो पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो गई। चेंज इन रीडिंग फ्रेम, रीडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। थैलेसीमिया इस का म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल है, ध्यान रहेंगे। तो ये आपने देखा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, थैलेसीमिया है। और इसमें भी ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से बदलाव आया है। पहले ये ल्यूसीन तक सेम था, फिर UAC और GG था। अब यहाँ पे आप देखेंगे UUA, यानी आपने यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया U एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे UAC तो C हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो सीक्वेंस चेंज हो गया।
तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। डिलीट किसी एक नाइट्रोजन बेस को डिलीट करने से या किसी एक नाइट्रोजन बेस को ऐड करने से पूरी की पूरी फ्रेम अगर चेंज हो जाती है तो इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप, जैसे ये नाम बताया राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब बिग, तो ये जैसे नाइट्रोजन बेस जुड़े हैं, एक जुड़ा है, फिर 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, तो सेंटेंस पूरा चेंज हो गया, राम हैज बिग कैप। तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस भी चेंज हो जाता है। इसमें ये बताया गया, इंसर्शन में भी बताया है, डिलीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। मल्टीपल बेस कोडन अमीनो एसिड रीडिंग द फ्रेम एंड अनरिलेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट जेनेटिक प्रूफ दैट कोड इज प्रिपेयर्ड एंड इट इज रीड इन द कंटिन्यूअस मैनर। तो इसमें ये भी बताता है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अपना ये एक एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी बता रहा है कि जेनेटिक कोडन कितने नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। द वॉवेल रूल, वॉवेल साइंटिस्ट ने बताया था द पेयरिंग परमिटेड आर बोथ गिव राइबोज टू राइबोज डिस्टेंस क्लोज टू दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। ए यू एडेनाइन हमेशा यू से जुड़ता है और जी हमेशा सी से जुड़ता है, ताकि उनकी राइबोसोम और राइबोसोम के बीच में, राइबोज और राइबोज शुगर जो है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। तो वॉवेल में ये बताया गया था कि अगर आप थर्ड नाइट्रोजन बेस को चेंज करें, मतलब थर्ड नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए तो उन राइबोज और राइबोज के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे ए में दे रखा है इनोसिन और साइटोसिन, तो इनोसिन साइटोसिन की जगह यहाँ पे यूरासिल आ गया, ठीक है, और इनोसिन एडेनाइन, और आप यहाँ देखेंगे फिर दे रखा है इनोसिन यूरासिल। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों के बीच में यहाँ कितने बॉन्ड जुड़े हुए, 2 बॉन्ड है, या 2 बॉन्ड है, या 2 बॉन्ड है, सब में डबल डबल बॉन्ड बन रहा है। तो राइबोज और राइबोज के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम हो रही है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, वॉवेल कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि जिसको हम साइलेंट म्यूटेशन में भी ले रहे थे, कि अगर थर्ड नंबर नाइट्रोजन बेस को चेंज किया जाए तो किसी प्रकार के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं आता, तो इसको अपन वॉवेल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो किसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस कब चेंज नहीं आएगा, जब थर्ड नंबर और अमीनो एसिड भी सेम बन रहा हो। तो इसी में वो भी कॉन्सेप्ट बताया कि ए की जगह AGG लगा दिया जाए तो भी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसको वॉवेल कॉन्सेप्ट कहते हैं। द राइबोज राइबोज डिस्टेंस फॉर द वॉवेल पेयर आर क्लोज टू दोज ऑफ AU एंड GC बेस पेयर, यानी AU और GC में जितना डिस्टेंस है उतना ही AU के अंदर डिस्टेंस होगा। तो ये राइबोज राइबोज डिस्टेंस बताता है। और इसका मेन कॉन्सेप्ट वॉवेल का ये रहता है कि थर्ड नाइट्रोजन बेस इन अ जेनेटिक कोडॉन इज कॉल्ड वॉवेल बेस। उसको क्या कहते हैं, वॉवेल बेस कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, थर्ड बेस किसका होता है, वो mRNA का माना जाता है। mRNA का 5' to 3' लेते हैं। तो mRNA का जो तीसरा थर्ड नंबर नाइट्रोजन बेस है उसको वॉवेल बेस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का चेंज यदि आ जाता है तो उससे जुड़ने वाले tRNA में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टाइप ऑफ tRNA उसके लिए यूज में आएगा, तो उसको वॉवेल बेस कहा जाता है। देन RNA लेते हैं। RNA जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैसेंजर RNA, जैसे पहले भी पढ़ चुके हो, मैसेंजर RNA क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और मैसेंजर RNA टोटल कितने होते हैं, 5%, यानी सब RNA के 5% RNA के मैसेंजर RNA होते हैं। और इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो 75 लाख के करीब बताया है। ये वैसे सही नहीं है, इसमें अपन कह सकते हैं कि 50,000 से ऊपर रहती है। चलो, ट्रांसफर RNA जो है tRNA वो अबाउट 90, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की संख्या 90 रहती है और ये केवल टोटल RNA का 15% होते हैं। राइबोसोमल RNA टोटल RNA का 80% रहते हैं और इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 120 से 3000 तक होती है। तो इसमें 75 से 3000 ले सकते हैं, है ना। ये 750 से 3000 ले सकते हैं, इतना कुछ ले सकते हैं। तो इसमें अपन ने क्या सीखा कि RNA 3 तरीके के होते हैं एंड उनके पहला डिफरेंस अपन पूछा जाए तो परसेंटेज, mRNA का परसेंटेज कितना है, 5%। ट्रांसफर RNA का परसेंटेज कितना है, ट्रांसफर RNA का परसेंटेज है 15% और राइबोसोमल RNA का 80%। mRNA कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है, 75 से 3000। ट्रांसफर RNA कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है, 90 और राइबोसोमल RNA 120 से 3000। तो ये 2 डिफरेंस हमने यहाँ रीड किए। अब 1 by 1 कर लेते हैं mRNA। मैसेंजर RNA 1 to 5% होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था।
है ना। दे हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 1000 to 1000 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि वही 75 to 3000 और 10,000 तक भी हो सकते हैं। दे हैव अ फ्री फॉस्फोराइलेटेड 3' इनके 3' किनारे पर पॉली एडिनाइल होते हैं और 5' किनारे पे जो है वो मिथाइल ग्वानोसिन होते हैं, जो हमने पहले प्रीवियस कंटेंट में पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंदर भी। तो HNRNA से किस प्रकार mRNA बनता है, तो 5' किनारे पे 7 Mg होता है और 7 Mg 7 मिथाइल ग्वानोसिन होता है और 3' किनारे में पॉली A चेन होती है, जिसको अपन ने कैपिंग और टेलिंग नाम दिया था। Okay, intrastructure based pairing among the complementary base allow folding the linear molecule as a result of hairpin or loop like structure is formed. ओके, तो इसमें ये ध्यान रखें कि कभी कभी ये हेयरपिन और लूप लाइक स्ट्रक्चर भी बना देते हैं लीनियर स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होके। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया mRNA इज डायरेक्ट कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। mRNA डायरेक्टली प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। सेकेंड लेते हैं tRNA और इसका फंक्शन क्या है। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लॉवर लाइक स्ट्रक्चर आर एंड tRNA अमीनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्टर आर्म विद बेस सीक्वेंस CCA 3' OH ऑफ द एमिनो एसिड। इसके अंदर जो एक्सेप्टर आर्म होती है वो 3' किनारे पे होती है जहां अमीनो एसिड जुड़ता है। इसके अलावा एन एंटीकोडॉन आर्म विथ रिकॉग्नाइज्ड कोडॉन, एक एंटीकोडॉन आर्म होती है, एक T साइट C होती है और एक D आर्म होता है। इसको अपन डायग्रामेटिकली समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको डायग्रामेटिकली समझा जाएगा। पहले फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इट्स कैरियर क्या कैरी करता है tRNA, अमीनो एसिड को कैरी करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर RNA। ओके, कहाँ, जहाँ प्रोटीन बंधा होता है वहाँ अमीनो एसिड को लेके जाता है, यानी mRNA पर। देयर इज एटलीस्ट 1 tRNA मॉलिक्यूल टू ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड। हर tRNA अमीनो एसिड, हर एक अमीनो एसिड के लिए एक अलग अलग प्रकार का tRNA जरूर। द tRNA इज ऑल्सो स्पेसिफिक। ओके, डायग्रामेटिकली इसके कंटेंट को समझते हैं। फ्रांसिस क्रिक दैट देयर इज हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड फॉर आल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन टू रीड द कोड। तो अमीनो एसिड को रीड करने के लिए कौन होता है, tRNA। और ही पोस्टुलेट दैट tRNA वन हैड रीड द कोड एंड अदर हैड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो 3' किनारा जो tRNA का है वो अमीनो एसिड से जुड़ता है। द tRNA इज कॉल्ड sRNA, सॉल्युबल RNA भी कहा जाता है। स्मॉलेस्ट लेस देन 100 न्यूक्लियोटाइड, केवल 90 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं tRNA के अंदर। सिंगल स्ट्रैंडेड टेक्स शेप ऑफ 2D मॉडल दैट कॉल्ड क्लॉवर लीफ मॉडल। इसका जो टू डायमेंशनल मॉडल होता है उसको क्लॉवर लीफ मॉडल कहते हैं। वो इस तरीके से देता है। इसमें आपकी बुक के अंदर NCERT की बुक में ये दोनों डायग्राम दे रखे हैं, तो ये डायग्राम काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पे इस सेरीन की जगह A लिख दिया जाता है और यहाँ पे जो ये mRNA के सीक्वेंस है यहाँ पे ये B लिख दिया जाता है। तो आपको ये एज इट इज एटलीस्ट जो NCERT की बुक में दे रखा है वो आपको याद करना है कि AGU कोडॉन होता है तो वो सेरीन बनाता है और UGA कोडॉन होता है तो वो टायरोसिन बनाना है। तो ये दो डायग्राम आप जरूर याद करें। इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनली हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में रहता है तो ज़्यादा एडेप्ट रहता है, स्पेशली एंजाइम से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसलिए इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। और हाईली कोइल्ड होने के कारण इजीली सॉल्युबल भी हो जाता है, इसलिए इसको सॉल्युबल मॉलिक्यूल, सॉल्युबल tRNA भी कहते हैं। ये दो डायग्राम आप जरूर याद रखें क्योंकि काफी बार इसको पूछा जाता है। tRNA के डायग्राम में इससे देख लेते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं ये 3' किनारा है और 3' किनारा पे एस्टर बॉन्ड के द्वारा ये अमीनो एसिड से जुड़ता है। विच एंड ऑफ द tRNA बाइंड विद द अमीनो एसिड, 3' एंड। 5' एंड पे देखो केवल G है, तो यहाँ लिखा हुआ है कैरियर एंड हैज G एंड इट्स 5' एंड CCA-OH 3' फॉर अमीनो एसिड। तो 5' किनारे पे केवल 5' किनारे पे आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल G नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है, जबकि जो 3' किनारा है वहाँ पे जो सीक्वेंस है वो CCA है, CCA सीक्वेंस होता है, CCA सीक्वेंस होता है और जो कि अमीनो एसिड से जुड़ता है। इसके अंदर ये mRNA 5' 3' पे है, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन साइट जो होती है वो प्रेजेंट होती है और अमीनो एसिड एक्टिविटिक सिंथेसिस एंजाइम DHU। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये वाली साइट जो होती है, ये वाला DHU लूप है और ये जो है वो एंजाइम साइट है, एंजाइम साइट है, इसलिए इसको अमीनो एसाइल साइट भी कहते हैं, अमीनो एसाइल साइट भी कहते हैं। और ये कोडॉन के सामने ये वाला कौन है, एंटीकोडॉन। तो इस तरीके से लूप कितने हुए tRNA के अंदर, 3 लूप हुए और आर्म्स कितनी हुई, 4। देखिए 1 2 3
4. How many arms is there? 4. How many loops is there? 3. तो DHU लूप इधर होता है और अमीनो एसिड लूप जो होता है वो इस तरफ रहता है. इस तरफ का मतलब क्या हो गया कि ये वाली साइड अमीनो एसिड लूप होती है और पेप्टाइड बॉन्ड ये जो अमीनो एसिड पे है तो पेप्टाइड जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाएगी पेप्टाइड की, वो इधर रहेगी. इसको P साइड कहेंगे और इस वाली साइड को A साइड कहेंगे, जो हम ट्रांसलेशन के अंदर भी पढ़ेंगे. ये डायग्राम देखो, ये उल्टा दे रखा है, इसके अंदर 5' 3' mRNA इस तरीके से दे रखा है, तो आपका ये D लूप हो गया और ये T साइड C लूप हो गया. तो इस तरीके से इसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से लूप होते हैं. ये अमीनो एसिड का 3' कोडॉन हो गया और ये एंटी कोडॉन हो गया. तो इसमें लूप जो है वो 3 रहती है और जब ये mRNA को आप यहाँ पे mRNA जो है वो 3' 5' दे रखा है. mRNA को जब आप 5' 3' करोगे, mRNA को जब आप 5' 3' करोगे तो T साइड C लूप इधर आ जाएगा और D लूप जो है वो इधर आ जाएगा. तो वापस देख लेते हैं, इसके अंदर उल्टा था तो D लूप ये रहेगा और A लूप ये रहेगा, लेकिन उसके अंदर उल्टा हो जाएगा. तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट ले लेते हैं. यहाँ पे देखिए ये P प्रोटीन की चेन बन रही है, tRNA है, mRNA पे आ रहा है राइबोसोम पे, है ना, ये पेप्टाइड बन रहा है इस तरीके से. तो इसके अंदर ये बताया गया कि ट्रांसफर RNA का मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको tRNA कहते हैं. ये डायग्राम में ये आपको समझना है. For the initiation, there is another specific amine that is referred to the initiated tRNA. There is no tRNA for the stopping. Stopping codon के लिए किसी भी प्रकार का tRNA नहीं होता है. The secondary structure like clover leaf, secondary structure 2D dimensional clover leaf के लिए होता है. इसके अलावा actual structure of tRNA is compact. वास्तव में जो structure होता है tRNA वो compact होता है, जिसको 3D structure भी कहते हैं. clover leaf को 2D structure कहा था और इस compact structure को 3D कहते हैं, जिसको inverted L यानी inverted L का structure रहता है 3D structure. ओके, तो दो प्रकार के tRNA के स्ट्रक्चर रहते हैं. अब ले लेते हैं rRNA. राइबोसोमल RNA कहते हैं, इन द अकाउंट ऑफ 80% होते हैं राइबोसोमल RNA. इसमें 100 to 600 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रहते हैं. प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर में रहते हैं. मेनली फंक्शन जो होता है दे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम के अंदर भी rRNA पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. इसमें अपन देख लेते हैं, इसके दो यूनिट होती है, एक लाइट यूनिट होती है और एक हेवी यूनिट होती है. तो ATS राइबोसोम और अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं. द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ RNA आर अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं. इट इज इन एक्टिव स्टेज. It exists 2 units, one is small and second is large. When the small subunit encounter an mRNA, the process of translation of the mRNA protein begin. जब small unit जो mRNA से जुड़ती है तो जाके प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है. There are 2 sides in the large subunit be close enough to each other the formation of peptide bond. तो लार्ज यूनिट जो होती है तो वो भी जुड़ती है उसके बाद में, और लार्ज यूनिट का जो 20S rRNA है वो कैटेलाइज की तरफ वर्क करता है. यानी कि अगर प्रोकैरियोट है तो 23S और अगर यूकैरियोट है तो 28S. ये जो है कैटेलिस्ट की तरफ वर्क करते हैं. इसमें आप देखेंगे प्रोकैरियोट राइबोसोम 70S होता है, यूकैरियोट राइबोसोम 80S होता है. तो प्रोकैरियोट की जो स्मॉल यूनिट है वो 30S है, यूकैरियोट की स्मॉल यूनिट है वो 40S है, जो आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है. इसके अंदर प्रोकैरियोट का जो बिगर यूनिट है वो 50S है और यूकैरियोट का बिगर यूनिट है वो 60S है. ये Mg++ से आपस में जुड़े रहते हैं. So this is all about all 3 different type of RNA, genetic codon and missense, nonsense mutation and transcript mutation. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स नीट एस्पिरेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके. किसी तरह की क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिले, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. सो गुड डे टू ऑल, गुड डे.